Hello, students and everyone. I hope you all are well. Now, I am going to discuss another topic of management accounting of Unit Second, preparation of cash flow statement Part Two. In this particular session, I discuss with you about the direct and indirect methods of preparation of cash flow statement from operating activities and etc. So, basically, for the calculation of cash flow statement from operating activities, and receipts and payment shown in the profit and loss account are converted into the receipts and payment actually in cash, or this purpose non-cash revenue and non-cash expenses, and eliminating from the revenue earned and expenses incurred. So there are two methods for such calculation: direct method or indirect method. So method of preparation of cash flow statement, direct method. Second thing is indirect method. Third thing, we see the difference between the two methods is shown in the flow from the operating activities is calculated. In both cases, flow from investing and finance activities calculated same manner, and the net cash flow from operating activities is the same whether the statement is prepared by direct method or indirect method. So there are different things, and in my previous discussion, I already discussed about the different activities, operating activities and investing activities, and the financing activities. So flow from all these activities I discussed theoretical part. So let us discuss about the direct method. So direct method, basically under this method, cash receipts and payments related to operating activities are shown, and differences of these two results in cash flow from operating activities. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मेथड्स में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड उनको हम देखते हैं और उनके फिर उनको शो किया जाता है, और उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के उनको रिजल्ट्स को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फाइंड करते हैं. तो दिस बेसिकली दिस मेथड इज वेरी सिंपल, and result is more easily understand, and in this method you are analyzing or evaluating more your cash and bank account to identify the cash flow during the particular accounting years and so. तो अंडर दिस मेथड आप कई तरीके से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका अकाउंट्स हो, बैंक अकाउंट्स हो, या आपके कैश के एवल्यूशंस हो, एनालिसिस हो, वो सब चीज़ें भी हम इस डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा डिफरेंट टर्म्स जो हैं लाइक मेथड है तो उसमें फिर कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह भी आती हैं, और समटाइम्स हम नॉन एडजस्टेड क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल सकते हैं. तो एडजस्टेड और नॉन एडजस्टेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरह के जो सिस्टम्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, देखेंगे. इसके अलावा वेरियस एडजस्टमेंट्स हैं जो कि कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसिप्ट्स ऑन कैश पेमेंट्स में हम यूज़ करते हैं. तो ये एडजस्टमेंट है मींस इफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डेटर्स, क्रेडिटर्स, outstanding and prepared expenses are given in the questions, and certain adjustments are required to be made in order to find out cash receipts and cash payment. So these adjustment may be very important, and these adjustment may be used for various calculation of receipts, cash receipts and cash payments. And under this particular adjustment, the first adjustment is cash flow from operating, uh, cash flow फ्रॉम सेल्स. अगर हम देखें तो ये कहाँ से आता है, कैश इनफ्लोस मीन्स जो है आपका देखते हैं कि जो कैश है, कैश इनफ्लोस फ्रॉम सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस कैश कलेक्शन. तो यहाँ पर कैश और सेल्स का मतलब है कैश इन टर्म्स ऑफ हार्ड कैश जो हम सेल्स करते हैं, नगद जो हम बेचते हैं उसको कैश सेल्स में रखते हैं. इसके अलावा कैश कलेक्शन भी आपका होता है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड अदर थिंग्स उसमें आती हैं. तो इसकी सेकंड थिंग है, इसको अगर हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स. अगर आपके जो ओपनिंग डेटर्स हैं इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंट और इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, प्लस इसमें हम ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल कर सकते हैं. तो सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग डेटर्स, और इसमें से फिर माइनस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अगर हम करते हैं तो देन वी गेट द कैश इनफ्लोज फ्रॉम सेल.
सेकंड थिंग है आपकी कैश आउटफ्लोज। तो इस तरीके से कैश आउटफ्लोज ऑन परचेज की अगर हम बात करें तो द अमाउंट ऑफ परचेज गिवन इन ट्रेडिंग एंड अकाउंट एंड आल्सो कंसिस्ट ऑफ बोथ cash and credit purchase also there. So hence the cash outflows on purchase is computed. Then we use the this equation. Cash outflow on purchase is equal to purchase plus opening creditors plus opening bills payables, and then minus the closing creditors and minus closing bills payables. तो ये अगर हम करते हैं तो then we get द अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑन परचेज। जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उन पे से कितना पैसा हमारा खर्च हो रहा है वो एक्चुअल कैश आउटफ्लो ऑन परचेज हमें मिल जाता है। इसके अलावा इफ अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स सोल्ड इन गिवन इन द क्वेश्चन, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन जो है आपका अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो देन वी यूज दिस इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम इस तरह की इक्वेशंस को यहाँ यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अलग अलग तरह की चीज़ें हैं एंड देन विल बी यूज इन प्लेस ऑफ परचेज, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल यूज। तो एट दिस टाइम इस तरीके से हम चीज़ें इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो एडजस्टमेंट मेन एडजस्टमेंट होता है वो है कैश आउटफ्लो ऑफ एक्सपेंसेस। कैश आउटफ्लो ऑफ एक्सपेंसेस बेसिकली such amount of operating expenses is shown and which has actually been paid in cash, and in this context the different terms we use the all first thing all non cash items, जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं वो हम सब यहाँ देखते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, एक्सेट्रा, दे आर इग्नोर्ड, इनको हम इग्नोर करेंगे और जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं। और इसके अलावा इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंड कैश इन आउटफ्लोज इन कैलकुलेटेड, तो उसको हम एक्सपेंसेस को अगर आउटफ्लो को कैलकुलेट करना है देन वी गो फॉर दिस इक्वेशन, एक्सपेंसेस प्लस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग और माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड अगर हम करेंगे देन वी गेट द कैश आउटफ्लो ऑन एक्सपेंसेस। तो इस टाइप से जो है ये इक्वेशन हम इसमें यूज कर सकते हैं और इसके आधार पर हम जो है कैश आउटफ्लो ऑन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइक सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस ऑफ ₹40,000, outstanding in the beginning of the year is 5,000, outstanding at the end of the year is 10,000. So cash outflow on salary will be the 40,000 plus 5,000 means outstanding in beginning or minus 10,000 outstanding in the end अगर हम देखें then we get the 35,000. So this is the cash outflow on salary and तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इन केस प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हम बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो वहाँ पर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, कैश आउटफ्लो ऑन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माइनस प्रीपेड इन द बिगिनिंग प्लस प्रीपेड एट द एंड। तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, बिगिनिंग वाले को माइनस करेंगे और जो है एंड वाले को प्लस करेंगे, देन वी गेट द कैश आउटफ्लो ऑन एक्सपेंसेस इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से जो है आपके एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। So like it may be noted like sales return and discount allowed are deducted from the amount of sales and purchase return and deduct the receiver deduct from the amount of the purchase and etc. So if the adjustment related to purchase and sales and expenses are given in the question, the calculation of the cash flow and operating activities, तो ये अलग अलग तरह के सिस्टम है जिनको हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट है जिसको हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड में हम यूज़ करेंगे। प्लीज़ नोटेड एंड इसको अपने नोट्स में बना लीजिएगा। और सभी स्टूडेंट्स, इफ एडजस्टमेंट रिलेटेड टू परचेज सेल्स एंड एक्सपेंसेस आर गिवन इन द क्वेश्चन, द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बी एज प्रेजेंटेड। तो इसको हम इस टाइप से यूज़ करेंगे। अगर आपका एडजस्टमेंट दी गई है, अगर एडजस्टमेंट नहीं दी गई है तो सिंपल फॉर्मेट होता है जिसमें हम सिंपली जो है केवल ऊपर जो है सबसे पहले हम कैश लेते हैं, कैश सेल्स लेते हैं, उसमें फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और कस्टमर ऐड करते हैं और फिर उसमें से कैश परचेज और कैश पे टू कस्टमर और सप्लायर
और कैश एक्सपेंसेस को फिर इसमें से डिडक्ट करते हैं, देन वी गेट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड लेस इनकम टैक्स, और देन वी गेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर हम सिंपली बिना एडजस्टमेंट के करते हैं। बट अगर हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होंगी, और जनरली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एडजस्टमेंट के साथ आते हैं, तो वहाँ पर हम इस तरह के जो है फॉर्मेट को यूज करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन डायरेक्ट मेथड में हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ आपका फॉर्मेट है जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज द टोटल सेल्स। तो इसको हम सेकंड कॉलम में यहाँ पार्टिकुलर होगा अमाउंट का एक कॉलम, फिर सेकंड कॉलम अमाउंट का होगा जिसको टोटल अमाउंट भी हम कह सकते हैं। इसमें नाम नहीं दिए गए लेकिन अमाउंट के दो कॉलम आपके बनेंगे। तो पहला टोटल सेल्स होगा जिसको डायरेक्टली लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, यानी कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल जो भी होंगे प्लस करके उन दोनों को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे, देन उसको ऐड करके नीचे लेके आएंगे, और उसके बाद लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, जैसा कि हमने एडजस्टमेंट में भी आपको दिखाया था कि उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसा कि आपका ये वाला सिस्टम है, ये आपका सेल्स है, उसमें कैश कलेक्शन, तो सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर और क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर, तो वही चीज़ हमारी वहाँ पर भी हो रही है। तो ये आप देखेंगे ऐड अपना किया ओपनिंग डेटर्स और फिर क्लोजिंग डेटर्स को लेस किया, देन वी गेट कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जो है अमाउंट आपका मिल जाएगा। देन लेस द कैश पेड टू द सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, अगर कोई भी पैसा हमने सप्लायर्स एम्प्लॉयज़ को पे किया है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आपने इसको लेस किया। ऐड स्टॉक एट द एंड, तो स्टॉक इन्वेंट्री है तो उसको ऐड कर देंगे। लेस स्टॉक एट द बिगनिंग, तो उसको बिगनिंग वाले को हम इसमें से लेस करेंगे। देन वी गेट द टोटल परचेज, टोटल परचेज आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट एट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेएबल, यानी क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल हम उसमें ऐड करेंगे। लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेएबल्स, यहाँ पर हमने लेस किया। देन वी गेट द कैश पेड टू द सप्लायर, फिर कितना पेमेंट सप्लायर को वो अमाउंट हमें मिल जाएगा। एड द कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितने भी कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो ऐड हो जाएंगे। देन वी गेट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेटेड कैश हमें मिल जाता है। देन उसके बाद हम इसमें इनकम टैक्स को लेस कर देंगे, लेस इनकम टैक्स पेड, जो भी इनकम टैक्स का रेट दिया गया होगा या अमाउंट दिया होगा वो अमाउंट हमारा यहाँ से लेस हो जाएगा। Then we get net cash flow from operating activity. So this is the format which we use in the particular says method of direct method in cash calculation. तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या टोटल सेल्स लिखना है, उसमें ऑपरेटिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल डेटर्स प्लस बीआर बिल्स रिसीवेबल माइनस करेंगे। लेस आपने देखा लेस लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल एंड बीआर। तो इसी टाइप से हम पूरा इसमें इस फॉर्मेट को फॉलो करते चले आते हैं, और आपकी जो डायरेक्ट मेथड से नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो आपको एट द एंड मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस में आपको दिया गया होता है, इसके आधार पर क्वेश्चंस के आधार पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देन इनडायरेक्ट मेथड, अंडर दिस मेथड बेसिकली net cash flow from operating activities is calculated and on the basis of net profit before tax. Net profit before tax और by adjusting the amount of net profit or loss as per the detail जो भी हमारी दी गई होती है उसके आधार पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें हैं लाइक ऑल नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस शॉन ऑन द डेबिट साइड, ये आपको ध्यान देना है। जितने भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सब डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं, उनको हम ऐड करते हैं। और ऐसे चार्जेस में भी इंक्लूड लाइक डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, पेमेंट डिविडेंड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये सब आपके जो है इनको ऐड आइटम में रखा जाता है। उसके बाद ऑल नॉन कैश आइटम नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस शोन ऑन क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर डिडक्टेड। जो भी कैश नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं उन सबको हम क्रेडिट साइड में जो लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उनको हम यहाँ पर डिडक्ट करते हैं। तो दीज आइटम्स में भी इंक्लूड द प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज आर एडेड। अगर जो डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स में तो या इंक्रीज हो रहा है करंट लाइबिलिटीज में तो उसको ऐड करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज तो उसको हम डिडक्ट करेंगे। तो ये ध्यान देना, इनडायरेक्ट मेथड में हम इसको यूज करते हैं। दिस इज द फॉर्मेट बेसिकली विच इज यूज
when we calculate the net cash flow from operating activities and indirect method. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट राइट एट द टॉप, तो फॉर्मेट वैसे ही है आपका, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, दो फॉर्मेट होंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पर है, इसके साथ साथ वर्किंग नोट में भी आप करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ सेल्स नहीं आएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। इसको हम लास्ट कॉलम ऑफ अमाउंट जो भी है ऐड नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस जितने भी हैं, जैसे हमने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन सेल एंड डिवेंचर है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, ये जितने भी आइटम्स हैं, इस तरह के जितने आइटम्स हैं वो सारे आइटम आपके यहाँ आएंगे और ये सब ऐड हो जाते हैं। फिर इनको ऐड करके हम नीचे लिखेंगे और इसके बाद जो ऐड करके आएगा उसमें से लेस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो क्रेडिट साइड में होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उनको यहाँ पर लेस कर देते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा, इनको हम लेस करेंगे। लेस करके जो अमाउंट आपको मिलेगा इट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जब आपको मिल जाएगा, देन ऐड सम आइटम्स ऑफ of the balance sheet like decrease in current assets। अगर डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स में तो ये आपका ऐड आइटम हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज तो ऐड आइटम हो जाएगा, यहाँ पर लिखा, और इस आइटम्स को फिर यहाँ पर दोनों को प्लस करके हम इसके नीचे लिख देते हैं। देन लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसका अपोजिट होगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, उनको भी हम यहाँ पर लेस कर देंगे और फिर उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे। और ये सॉल्व करके, ये आइटम है, अमाउंट है, इसमें ये दोनों ऐड हो गए, फिर उसमें से लेस हो गया, देन वी गेट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका यहाँ पर आ जाएगा। लेस इनकम टैक्स, अगर कोई इनकम टैक्स आपका है तो वो इनकम टैक्स आप यहाँ पर पे करेंगे, क्योंकि ऊपर जो लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है, तो उसके बाद टैक्स आपको पे करना है, तो लेस इनकम टैक्स आप यहाँ लेस करेंगे। और देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर कोई है तो वो यहाँ पर लेस हो जाएगा, और इन दोनों आइटम को लेस करके जो अमाउंट आएगा, दिस अमाउंट इज नोन एज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी को नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये दोनों फॉर्मेट मैंने आपके आई डिस्कस विद यू elaborately. If you have any queries and any doubts, then call me, and please watch and share and subscribe the channels, all the things, and if you have any problem then go for the references of management accounting by Dr. KL Gupta. So yeah, I hope you understand. Then in my next topic I discuss some numerical problems related to direct or indirect method. So thank you very much.